नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में। दिन भर की सुर्खियों को समेटकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं दुनिया भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत 2047 का सपना होगा साकार। नीति आयोग को निवेश आकर्षित करने के लिए निवेश अनुकूल चार्टर तैयार करने का दिया निर्देश। नीति आयोग की बैठक के बीच में ही बैठक को छोड़कर बाहर निकली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के आरोपों को आयोग ने बताया बेबुनियाद। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री को मिला था पर्याप्त समय। भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, शामिल हुए प्रधानमंत्री। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। पीएम ने कहा, हमारी पार्टी सुशासन को आगे बढ़ाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर रही है अथक प्रयास। पश्चिम बंगाल की बदहाल कानून व्यवस्था पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी, राष्ट्रपति से लगाई गुहार। कहा, राज्य में है अघोषित आपातकाल जैसे हालात, ममता बनर्जी की सरकार को ठहराया जिम्मेदार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर की राजधानी वियंतियाने में आयोजित 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से की मुलाकात। रामायण और बौद्ध परंपरा की साझा विरासत पर विशेष स्टैंप हुआ जारी। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में जीत के साथ किया आगाज। रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड पर दर्ज की आसान जीत। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी भी जीती। निशानेबाजी में मनु भाकर ने फाइनल में बनाया स्थान। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा। A Vikasit Bharat, which is a developed India by 2047, cannot be achieved just by wishful thinking. You must have tangible goals which have to be pursued. And he said that the chief ministers have a major role in this, and that's why it was being discussed here. It is because a lot of the action for Vikasit Bharat is the collective action of states. So his basic request to all the states is, please develop vision plans for yourself, for each state, because Vikasit Bharat at the national level is an aggregation of a lot of Vikasit states. And to tell you all, the good news is, over the last year, a lot of states have moved ahead in preparing vision documents. Uttarakhand has one, Uttar Pradesh has one, Gujarat has one, Tamil Nadu has one. In the pipeline, we have Goa, we have Madhya Pradesh, we have Chhattisgarh, we have Orissa, we have Assam, and we have a couple of other states also, Bihar, lining up to prepare vision documents. वहीं प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने और सुधारों के जरिए आर्थिक सामाजिक बदलाव के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए खासा जोर दिया। He also talked about the positivity that is there for FDI around the world towards India. He wanted states to compete with each other to attract FDI to the country. So that, and he wanted a template to be prepared about how good states are, and the specific word he used is an investor friendly charter, and start an investor friendly charter and ranking states on how investor friendly they are. So it's actually a modified version of EODB, ease of doing business, but actually a better one, where it will include a whole host of things like the legal system, what are the laws which are hindrances, what is the reduction in procedures which need to be simplified, what are the incentives that need to be given, how good is the law and order, how good is the transparency, how good is the infrastructure. So he's actually asked NITI to construct an index so states can compete in attracting FDI. End of the day, you can liberalize everything in FDI at the national level. But where the FDI flows is also important. And he made the point that if everything ends up in one corner of India, it's not good for the country. It needs to flow to all corners of the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी।
उन्होंने एक्स पर लिखा, नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया, मुख्यमंत्रियों के विचार सुने। भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की 2 दिवसीय बैठक शनिवार से दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में हो रही है। शनिवार को बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया गया। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया कि वे एक दूसरे की बेहतरीन योजनाओं को अपने राज्यों में लागू करें। भाजपा द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित मुख्यमंत्री परिषद का उद्देश्य राज्यों में प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करना, सर्वोत्तम शासन प्रथाओं का पालन करना और केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों का वितरण करना है। 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में 13 मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी सीएम हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की। हमारी पार्टी सुशासन को आगे बढ़ाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बीच राजनीति भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में उनका माइक बंद करने का आरोप लगाया, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए तयशुदा समय दिया गया था और उसका पालन किया गया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बीच विवाद की खबर भी सामने आई, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान उन्हें बोलने के लिए पूरा टाइम नहीं देने का आरोप लगाया और कहा ये उनका अपमान है। Why you discriminate? Why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. ममता बनर्जी के आरोपों को नीति आयोग के सीईओ ने सिरे से खारिज किया। Normally we would have gone alphabetically. So it begins with Andhra Pradesh, then Arunachal Pradesh, and then it goes on further down. Because West Bengal would be W, which would certainly come post lunch session. They wanted a request. It was in writing, and we actually adjusted. And the Raksha Mantri actually called her in just before Gujarat. So she made her statement. Every chief minister is allotted 7 minutes, and there's just a clock on top of the screen which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 00, nothing else. Nothing else has happened other than that. And what happens is, the Raksha Mantri just does that on his table. That's it. And that's it. And then she said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. That was it. There was nothing more. We all heard. She made her points, and we respectfully heard and noted her points, which will be reflected in the minutes. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए समय का प्रावधान किया गया था और सभी सीएम को बोलने का पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने ये झूठ बोला है कि उनका माइक बंद करा दिया गया। Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. इस बीच पत्र सूचना कार्यालय के फैक्ट चेक विभाग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दावे को भ्रामक करार दिया। पीआईबी ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि ये दावा भ्रामक है। घड़ी के मुताबिक उनके बोलने का समय समाप्त हो चुका था, यहाँ तक कि इसका संकेत करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई। पश्चिम बंगाल की सीएम के बोलने की बारी लंच के बाद आनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। नीति आयोग की बैठक वैसे तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए थी, लेकिन जहां एक और विपक्षी दलों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, तो ममता बनर्जी के गलत आरोपों के पीछे भी राजनीतिक वजह साफ झलकती है। मोदी सरकार सहयोगात्मक संघवाद के साथ तेजी से राज्यों के विकास पर काम कर रही है।
लेकिन राजनीति इसके आड़े आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हैरान करने वाली खबर आ रही है दिल्ली से। उस पर हम जानेंगे, अपने संवाददाता से उस बारे में जानकारी भी लेंगे, ताज़ा जानकारी लेंगे। लेकिन रुक करते हैं फिलहाल अगली खबर की ओर, जो कि कर्नाटक से है। कर्नाटक में रामनगर जनपद का नाम बदलने पर राज्य सरकार के फैसले पर भाजपा ने प्रहार किया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को भगवान श्री राम के नाम से एलर्जी है। राज्य सरकार ने रामनगर जनपद का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दी है। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने सवाल किया है। भाजपा का कहना है कि राम सेतु से लेकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हर जगह श्री राम के नाम का विरोध करते देखे गए हैं। भाजपा ने पूछा कि कांग्रेस को एकता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक भगवान श्री राम से इतना बैर क्यों है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ही नहीं, उसके सहयोगी भी ऐसी ही मानसिकता दिखाते रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी इंद्रधनुष के लिए बांग्ला शब्द रामधेनु को बदलकर रंगधेनु कर दिया था। ये दिखाता है कि भगवान श्री राम के विरोध में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मातृभाषा से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। पार्टी को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? कर्नाटका में जहां पर खटाखट लूट चल रही है, मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, वहां पर जन समस्याओं को सुलझाने के बदले रामनगर का नाम बदल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? रियल एस्टेट के दोस्तों को मदद पहुंचानी है, उनसे कुछ लेना देना है, या प्रभु श्री राम के प्रति इतनी उदासीनता और नफरत है? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा रामनगर जिले का नाम बदले जाने पर भाजपा ने नाराजगी व्यक्त की है। विधान परिषद सदस्य एन रवि कुमार ने कहा कि राजनीतिक कारणों से रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है, लेकिन कुछ भी विकसित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आगामी चुनाव के बहाने इस तरह काम करना शुरू किया है और जनता इसका करारा जवाब देगी। कर्नाटक में डीके शिव कुमार रामनगर जिला को एक नया नाम दिया है, बेंगलुरु साउथ डिस्ट्रिक्ट। क्यों के लिए नया नाम रखे हैं? वो जनता को ब्लैकमेल करने के लिए? आगे चुनाव, उपचुनाव आने वाले हैं, इसलिए क्या ऐसा बुलाए? ये सब जनता डिस्कशन कर रहा है, चर्चा कर रहा है। एक एप्ट डिसीजन, एक बहुत अच्छा डिसीजन जनता लेने वाला है। इसलिए हम आगे जाकर हम जनता के बीच में जाएंगे। डीके शिव कुमार का, सिद्धरामैया का, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का ऐसे ब्लैकमेल करना ये नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य की कानून व्यवस्था की बहाली के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की भी अपील की है। अधीर रंजन चौधरी के पत्र में कहा गया है कि राज्य में अघोषित आपातकाल है और मौलिक अधिकार बस एक सपना बनकर रह गए हैं। उन्होंने लिखा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के क्रूर रवैये के कारण पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है। राज्य सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी विरोधी दलों पर हुए अत्याचार का भी जिक्र किया गया है। इसमें न केवल बहुत से लोगों की जान गई, बल्कि रोजी रोटी से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली की घटना के साथ साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुर्शिदाबाद में दंगे कराए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों की जबरदस्ती अपने पार्टी में शामिल कराए जाने की वहां पर प्रचलन है। यदि कोई बात मानने से इनकार करता है तो उन्हें मार दिया जाएगा। जहां विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगर पालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता है। पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। यही कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की तस्वीर रोजाना हमें आपको सबको मिलता है। ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोगों के ऊपर दहशतगर्द करना शुरू कर देते हैं। और दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से एक छात्रा और कुछ छात्र बेसमेंट में फंस गए। रेस्क्यू करने पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने एक छात्रा का शव बरामद किया है। हालांकि सूचना पर एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और छात्रों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से बारिश के चलते राजेंद्र नगर के कई इलाकों में पानी भर गया है।
और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता गिरीश निशाना से। गिरीश, बेहद अफसोसनाक और हैरान करने वाली खबर, बेसमेंट में पानी भर जाना। ऐसे परीक्षार्थी जो वहां पर तैयारी करने के लिए जाते हैं, ताज़ा हालात क्या हैं? एक छात्रा का शव तो बरामद हुआ, कितनी तादाद में, कितनी संख्या में वहां पर छात्रों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है? फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या? देखिए अश्विनी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर चलते हैं। उसी में से एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पर IAS की कोचिंग कराई जाती है। और ये आज शाम को देर शाम में जब यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई इस इलाके में, तो यहाँ जो पानी था वो कहा जा रहा है कि जो नालों के माध्यम से उसमें बैक मार गया, और उसके साथ में जो बारिश बहुत ज्यादा हुई और उसकी वजह से यहाँ पानी भरा। तो पूरी तरह से ये जो बेसमेंट था उसके अंदर पानी भर गया। और कहा यह जा रहा है, अभी जो फिलहाल NDRF की टीम ने जो एक फीमेल बॉडी को निकाला है, एक छात्रा की बॉडी को निकाला है, अभी उसकी शिनाख्त की जाएगी कि वो छात्रा कौन है, कहाँ से संबंध रखती है, किस राज्य की है, क्योंकि यहाँ तैयारी करने के लिए दिल्ली से बाहर के विद्यार्थी जो हैं वो दिल्ली के अंदर आते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं। और ये बताया जा रहा है कि IAS कोचिंग सेंटर था जहाँ पर रोजाना यहाँ पर क्लासेस चलती थी। और अभी फिलहाल जो NDRF की टीम लगातार जुटी हुई है शाम से, और लगातार NDRF की टीम ने यहाँ पर पाइप के जरिए पंप लगाकर अंदर से पानी निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। काफी हद तक आधे से ज्यादा यहाँ पर पानी जो है खाली हो चुका है कोचिंग सेंटर के अंदर से। लेकिन जिस तरह से अभी एक केवल बॉडी निकाली गई है, छात्रा की बॉडी है, उसको शिनाख्त के लिए भेजा गया है। लगातार NDRF, दिल्ली पुलिस जुटी हुई है प्रयास में कि जल्दी से जल्दी इसको पूरे को राहत और बचाव कार्य को पूरा किया जाए। और जो 2 से 3 और छात्र होने की आशंका जताई गई है कि और हो सकते हैं इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के अंदर, तो इसके लिए लगातार NDRF जुटा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने सबसे पहले एक बॉडी निकाली है, छात्रा की बॉडी है, इसको भेजा गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में जल भराव की स्थिति पैदा हुई, उसने कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर सवाल जरूर खड़े कर दिया ध्वनि, क्योंकि जो नई दिल्ली की सांसद है बांसुरी स्वराज, वो मौके पर पहुंची हुई हैं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ के पूर्व निगम पार्षद राजेश भाटिया मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो सबने कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिल्ली सरकार को घेरने का प्रयास किया है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर स्थानीय जो भाजपा है वो सवाल उठा रहे थे कि यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या बनी रहती है, जल भराव की स्थिति पैदा रहती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल दिल्ली सरकार पर एक बार फिर से उठ गए हैं। हालांकि अगर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि उनको सूचना मिली है कि इस तरह की ये घटना घटी है, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश इसके अंदर दे रहे हैं ताकि इसमें सब चीज स्पष्ट हो सके। लेकिन सवाल इस घटना ने बहुत बड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि एक बारिश की वजह से अभी तक एक छात्रा की मौत सामने आई है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है दिल्ली सरकार के ऊपर भी कि इस तरह से जो बाहर के राज्यों के बच्चे दिल्ली के अंदर तैयारी करने के लिए आते हैं, सपने लेकर आते हैं कि वो IAS बनेंगे, और IAS की तैयारी के लिए इस तरह के कोचिंग संस्थानों में अपनी कोचिंग लेते हैं। और इस तरह से अगर पानी भर जाए और इस तरह से उनको कहीं ना कहीं काल की गाल में समाना पड़े, तो एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सरकार पर एक बार फिर से खड़ा हो गया है। गिरीश, अगर हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, घुटने भर भी पानी नहीं है और छात्रा की मौत होती है। इससे पहले 22 जुलाई को भी करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई थी, इसी पटेल नगर चौराहे के पास कोचिंग से ही लौटने वाले बच्चे की। मुखर्जी नगर या फिर अगर देखें राजेंद्र नगर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनेक ऐसे कोचिंग चलते हैं, बेसमेंट में चलते हैं, ह्यूमिडिटी में चलते हैं, अमानवीय स्थितियों में चलते हैं। क्या कुछ जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बार बार होने वाली इस तरह की घटनाओं पर कुछ राज्य सरकार का क्या रुख है? केवल वही की जांच बैठा दी जाएगी? 22 जुलाई को भी एक युवक की मौत हुई थी करंट लगने से। देखिए, इस तरह की काफी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, और इस पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट भी काफी सख्त दिखाई दिया है, और उसने कई बार दिल्ली सरकार को इस मामले में फटकार भी लगाई है। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई गिरीश, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। आइए दिखाते हैं कि सांसद बांसुरी स्वराज का क्या कुछ कहना है इस हादसे की जरूरत पड़ी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है।
और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। मैम, विधायक और मेयर दोनों करेंगे, आपदा के समय में ऐसे बीजेपी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है। एक दशक से, पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। स्थानीय लोग बार बार एक सप्ताह से बोल रहे हैं कि नाले की सफाई करवा दीजिए। नाले की सफाई अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कराई होती तो आज ये बेसमेंट जलमग्न नहीं होता और बच्चों की जान नहीं जाती। और ये पहला वाकया नहीं है, आप जानते हैं पिछले दिनों इसी तरह वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण पटेल नगर में एक एस्पिरेंट की डेथ हुई है। उससे पहले 2 बच्चे जो दूध लेने जा रहे थे वो भी जलमग्न होकर इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण उनकी डेथ हुई है। कब तक दिल्ली वासी अपने प्राण इस तरह खोते रहेंगे इनकी लापरवाही के कारण? भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने तीखा हमला बोला है राज्य सरकार पर और ये कहा कि लगातार होने वाली ये घटनाएं साफ तरीके से बताती हैं कि किस तरीके से अनदेखी की जा रही है नागरिक सुरक्षा की। हमारे साथ गिरीश निशाना जुड़े हुए हैं। गिरीश, हमने देखा बेहद तल्ख अंदाज में आक्रोशित बांसुरी स्वराज ने कहा और पूरा का पूरा जिम्मेदारी उन्होंने राज्य सरकार पर कहा। किस तरीके से बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, करंट लगने से युवकों की मौत या फिर कहीं नाले में डूबने से छोटे बच्चों की मौत, और आज ये स्थिति कि कोचिंग सेंटर में जल भराव के कारण किसी बच्ची की मौत। किस तरीके से ये स्थितियां हैं और ख़ास तौर से अगर देखें तो ये राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर इस तरीके के इलाकों में आए दिन ऐसी स्थितियां होती, कभी आग लगती है या कोचिंग सेंटर्स का जो मनमाना स्वरूप है उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से ये घटना सामने आई है, पहले ये जानना जरूरी होगा कि अभी एक जांच सामने आई है। जांच में सामने आया है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, जहां पर लाइब्रेरी में ज्यादातर जो है 30 से 35 विद्यार्थी जो युवा है रोजाना वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते थे। और आज अचानक से बेसमेंट में पानी तेजी से जब शाम को भरने लगा तो काफी जो विद्यार्थी थे बेसमेंट में बेंच के ऊपर खड़े हो गए थे। पानी के दबाव से बेसमेंट में लगे कांच भी फटने लगे थे। बच्चों को जो है, काफी युवाओं को जो है रस्सियों से बाहर निकाला गया था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा अंदाजा था कि शायद पानी ऐसे ही भर रहा है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था, काफी विद्यार्थियों को ये पानी लगातार बढ़ता रहेगा और उनकी जान भी ले लेगा। तो बहुत सारे सवाल आज फिर से दिल्ली सरकार के ऊपर खड़े हो गए हैं कि क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया जाता। चाहे बेसमेंट हो, चाहे मुखर्जी नगर के अंदर पहले आग की घटना सामने आई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली उच्च न्यायालय जो है वो सख्त दिखाई दे रहा था, उसने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। और एक बार फिर से अब बहुत सारे दिल्ली सरकार पे सवाल खड़े हो गए हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो युवा हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं, किसी को करंट लग जाता है, कोई पानी में अंदर डूबने से मर रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं अश्वनी, जिसने दिल्ली सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो युवा हैं जो अपने सपने दिल्ली लेकर आए थे, आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे, आज उनके माँ बाप और उनके परिवार जन से पूछिए उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा कि उनके जो बच्चे आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे वो तो चूर हो गया, लेकिन उनके जो परिवार का एक सदस्य है वो उनको छोड़ के चला गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही झकझोर रखने वाली ये दुखद घटना है, उसने बहुत सारे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी होता है और स्थितियां ये तब बनती है गिरीश जब सरकारों की आंखों का पानी मर जाता है और पानी सर से ऊपर बहता है, शर्म से हमें पानी पानी कर देती हैं ऐसी घटनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश हमसे जुड़ने के लिए। रुक करते अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट को लेकर कहा कि इस बजट में युवाओं और उनके रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रोजगार और युवा लक्ष्य, मध्यम उद्योग लक्ष्य और मध्यम वर्ग के लिए ये बजट उसके जीवन में बहुत परिवर्तन लाने वाला है। ये बजट से प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी पूर्तता करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इस बजट रखेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने
रायपुर में बजट पर चर्चा के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का बजट गरीबों को सहायता देने, एमएसएमई को बढ़ावा देने और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला बजट है। बजट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। एक अच्छी स्कीम स्किल डेवलपमेंट के लिए लाई गई। स्किलिंग आज के देश की रिक्वायरमेंट है और इस स्किलिंग करने के लिए आज देश में हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआई चलाई जाती है। देखो, एक बार हम कहते हैं, बात करते कि एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, दूसरी जगह पे आज नेशनल सर्विस पोर्टल पर जाके आप देखो कितनी नौकरियां ओपन हुई है। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के गुवाहाटी में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट को पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बजट में विशेष पैकेज भी रखा गया है। डोनर मंत्रालय का बजट का आवंटन भी जो 1775 करोड़ रुपए होता था, उसे बढ़ाकर करीब 6000 करोड़ बजट का आवंटन भी डोनर मंत्रालय के लिए बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 24 2,30,000 करोड़ रुपए दी गए। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बजट में विशेष पैकेज रखा गया है, उसमें असम और सिक्किम को भी रखा गया है। सभी राज्यों के साथ मिलकर योजना भी हम लोग बनाएंगे और उस बजट प्रावधान का पूर्ण इस्तेमाल भी केवल असम नहीं लेकिन बाकी सरकारें भी करें, ये हमारी कोशिश भी रहेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर कहा कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, आज ये 5वें स्थान पर है। 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए बजट की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में शायद 11वें या 10वें स्थान पे थी। वहां से चलते चलते आप पहुंच गए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगी। ये असंभव है कि अगर ये हमारे 11 मोदी जी के समय के 11 बजट अगर ठीक नहीं होते तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे और जा रही है तीसरे स्थान पे, हो ही नहीं सकता। रेल मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में एक प्रेस वार्ता के दौरान वर्ष 2024-25 के बजट की सराहना की। पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित भारत का बजट है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट का मुख्य फोकस रोजगार बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 9 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित करके इस बजट से विकास सुनिश्चित किया जाएगा। ये विकसित भारत का जो बजट है ये इंक्लूसिव, इम्पैक्टफुल और इनोवेटिव बजट है। इसमें विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर नजर रखते हुए 9 प्रायोरिटीज पर इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए 9 प्रायोरिटी थीम्स पर काम किया है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बजट फॉर विकसित भारत के तहत मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बजट फॉर विकसित भारत के जुड़ी चर्चाओं में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बजट में उत्तर पूर्व की विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है ताकि उत्तर पूर्व में नए आर्थिक अवसर पैदा हो सके। Honorable Prime Minister has directed not only we should confine to roadways and railways and airways, but we should go for the waterways. That is why Bangladesh Protocol route has been opened. Global market has been made accessible to the people of Northeast. So this is the reason why budget provision is created like this. It is not that we are simply staying in a landlocked state or region. Nowadays,
this particular area has been focused in such a manner that it has become easily accessible. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जम्मू पर बजट पर बातचीत करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए मजबूत नींव का काम करेगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है। को विकसित भारत बनाएं, उसके लिए ये बजट नींव का काम करेगा। हमारे यहाँ पे एमएसएमई का भी जोर है। जब एमएसएमई का जोर है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, तो मुद्रा लोन की जो सीमा है वो 10 लाख से 20 लाख की गई है। मेडिसिनल प्लांट को तरक्की मिले, उन्नति मिले, उस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। ऐसे कई हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये अपना आप में एक बड़ा काम है। एक और बड़ा काम है नेचुरल फार्मिंग का, कि नेचुरल फार्मिंग में भी जम्मू आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,40,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। महाराष्ट्र 25,044 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ सूची में सबसे ऊपर है। कर्नाटक 15,019 स्टार्टअप के साथ दूसरे स्थान पर। दिल्ली 14,734 स्टार्टअप के साथ तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने 13,299 स्टार्टअप के साथ चौथा स्थान बनाया है, जबकि गुजरात 11,436 स्टार्टअप के साथ 5वें स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान में 19 कार्यवस्तुएं शामिल की गई हैं। स्टार्टअप की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ फंड फॉर स्टार्टअप्स की स्थापना की। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय बोध कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से भाजपा की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव से सांसद चुने गए राम भुआल निषाद के चुनाव को चुनौती दी है। कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मेनका गांधी ने सपा सांसद राम भुआल निषाद का निर्वाचन रद्द करने की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि राम भुआल निषाद पर 12 मुकदमे दर्ज हैं, मगर उन्होंने चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में केवल 8 मुकदमों का जिक्र किया है। आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर 26 जुलाई तक वर्ष 2024-2025 के लिए 5 करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हो चुके हैं। ये पिछले वर्ष में दाखिल किए गए आईटीआर से 8% अधिक हैं। 26 जुलाई को ही 28 लाख से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं। झारखंड के पाकुड़ स्थित केकेएम कॉलेज के छात्रों ने पुलिस पर हॉस्टल में घुसकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। कई छात्रों को गंभीर चोट आई है। दरअसल कॉलेज के छात्र बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। योजना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छात्रावास में घुसकर छात्रों की बर्बरतापूर्ण पिटाई की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों पर की गई कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घायल तस्वीरों को जारी करते हुए कहा और सवाल पूछा कि अपनी मां बहनों की रक्षा के लिए घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा छात्रों पर अत्याचार और बाहरियों पर इतना प्रेम बरसाने की क्या वजह है। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। इन्हें संरक्षण देकर आप प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर माछिल सेक्टर के कामकारी में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर गोलीबारी की घटना में सेना के 4 जवान घायल हो गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी घुसपैठिया आतंकवादी मारा गया। गोलीबारी में राइफलमैन मोहित राठौड़ शहीद हो गए। चिनार कॉर्प्स ने घटना पर संवेदना जताते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान जताया है। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम बैट आतंकवादियों की घुसपैठ करा रही है।
सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में इसकी खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ राहत के लिए एक और टुकड़ी को सक्रिय किया है। इंजीनियर्स टास्क फोर्स, इन्फेंट्री इकाइयों और मेडिकल टीमों के लगभग 100 कर्मियों वाली इस टुकड़ी को जिला कलेक्टर की मांग पर राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ और नावों के साथ तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस समय बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात है और लगातार लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने का काम कर रही है। हालिया अपडेट के मुताबिक एक तनाव संबंधी कॉल मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम कोल्हापुर के हथकनगले तालुका के नीरेवाड़ी गांव पहुंची, जहां पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और एनडीआरएफ की टीम तैनात है और लगातार लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने का काम कर रही है। हमारे संवाददाता योगेश शीतल ने राहत एवं बचाव कर्मियों से बातचीत की और पूरी स्थिति का जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश और कुछ नदियों के उफान पर आने की वजह से कोल्हापुर के कई गांवों में पानी आ गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अंबेवाड़ी गांव में इस वक्त हम हैं, जहां पे पूरी जो सड़क है जो कि शहर से जोड़ती है गांव को, पूरी तरीके से आपको जलमग्न दिख रही होगी। पानी की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। काफ़ी तेज़ बहाव है यहाँ पर। जो पंचगंगा नदी है उसका जो जल है वो उफान के बाद आने के बाद जो है इन सब जगहों पर पूरा पानी आ गया है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर 24 घंटे जो है वो नज़र लगाई हुई है। किस तरीके से आप ऑपरेशन यहाँ कैरी आउट कर रहे हैं? कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जो अपना डेंजर लेवल है 43 है और ये ऑलरेडी अभी आज के टाइम में 47 पे पहुंच चुकी है। और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, अंबेवाड़ी हुआ जहाँ पर कि आप अभी यहाँ से आगे प्रेजेंट हैं, वडुंगे हुआ, चिखली हुआ, तो ये सब काफ़ी डेंजर जोन में है और पानी का बहाव भी देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। एनडीआरएफ की पहले एक टीम 1.5 महीना पहले से यहाँ पर आके रेकी करके लोगों को कम्युनिटी अवेयरनेस, किस प्रकार से बाढ़ में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी दिया है। एनडीआरएफ की दूसरी टीम भी हमारी रात में आ चुकी है। कुल कितने गाँव हैं जो अभी तक फिलहाल इस तरह की जो दृश्य है इसके चपेट में है, पानी की चपेट में है? देखा जाए तो सबसे पहले अंबेवाड़ी है, वडुंगे है, चिखली है, ये बहुत ही ज़्यादा लो लाइंग है। और साथ में इधर जयंती नाला है, कलेक्टर ऑफिस के जस्ट एडजॉइनिंग महावीर नगर में भी कल 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं? जो लोग अंदर में फंसे हैं कैसे आप वेल प्रिपेयर्ड है? कुल मिलाकर जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहाँ कई जगहों पर इस तरह के दृश्य बने हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है वो कि आने वाले दिनों में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, तो हो सकता है कि स्थिति में सुधार आए और लोगों को राहत मिले। अपने सहयोगी कपिल के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जहरीली गैस के रिसाव से चपेट में आने के कारण 3 श्रमिकों की मौत हो गई। ये मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 2 श्रमिक कुएं के अंदर लगे मोटर पंप को निकालने के लिए उतरे थे। उन्हें बचाने उतरा तीसरा श्रमिक भी गैस रिसाव की चपेट में आ गया। खतरनाक हालात को देखते हुए सेना की मदद मांगी गई। सेना की तकनीकी विशेषज्ञ टीम वहां पहुंच गई। जानकारी के अनुसार सेना के जवानों की एक्सपर्ट टीम ने वहां अपना काम शुरू कर दिया है। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष लगातार हल्ला कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को करगिल विजय दिवस के अवसर पर इस योजना का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर जमकर प्रहार किया। पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना, युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को विपक्ष ने राजनीति का विषय बना दिया। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी निजी स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के अग्निवीरों के लिए भर्ती में आरक्षण की घोषणा की गई। इन राज्यों में पुलिस से लेकर पीएसी और फॉरेस्ट फोर्सेज में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा की सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। हरियाणा और उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसे ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या विपक्ष केवल अग्निवीरों के भविष्य को लेकर जुबानी चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन अपने राज्यों में अग्निवीरों के कल्याण के लिए किसी तरह की योजना की घोषणा नहीं कर रहा है? ये ऐसी परंपरा विपक्ष ने शुरू कर दी है कि कितने भी देश हित की योजना बनाए, कितनी भी जन कल्याणकारी योजना बनाए,
उनकी नज़र पर चश्मा नकारात्मक सोच का चढ़ा है और वो केवल उसका विरोध करने का काम करते हैं, केवल उसकी खामियां निकालने का काम करते हैं, उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके, उसकी देश हित की योजनाओं के बारे में जनता के लाभ की स्थिति को नज़रअंदाज करके विपक्ष केवल बुराइयां खोजता है। अग्निवीर जैसी महत्वाकांक्षी योजना, अग्निवीर जैसी जन कल्याणकारी और देश जैसी योजना भी विपक्ष की इसी राजनीति का शिकार हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर की राजधानी वियंतियाने में आयोजित 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से आसियान एकता और केंद्रीयता को कायम रखेगा। समुद्री सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर से गुजरने वाली समुद्री संचार लाइनें भारत प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता, समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। SLOC एक टर्म है जिसमें बंदरगाहों के बीच प्राथमिक समुद्री दूरी को परिभाषित किया जाता है और इसका उपयोग व्यापार, रसद और नौसैनिक बलों के लिए किया जाता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आचार संहिता ठोस और प्रभावी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होनी चाहिए और चर्चा में शामिल नहीं होने वाले राष्ट्रों के वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेलुम्से कोमासिस से मुलाकात की। बैठक में भारत और लाओ पीडीआर में रामायण और बौद्ध धर्म के साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए एक विशेष स्टैम्प सेट लॉन्च किया गया। साथ ही मेकांग गंगा सहयोग के लिए लाओ पीडीआर के लिए 10 क्विक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच डिजिटल समाधान साझा करने के लिए बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31वें क्षेत्रीय आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओ पीडीआर में हैं। शनिवार को उन्होंने लाओ के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफंडोन से मुलाकात करके प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। हमारी विकास की साझेदारी और रक्षा, विरासत, संरक्षण, ऊर्जा, डिजिटल और क्षमता निर्माण में सहयोग पर चर्चा हुई। हमारे घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके मार्गदर्शन की सराहना करता हूं, जो साझा सभ्यतागत जुड़ाव में गहराई से निहित है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला अपने हीरे की खदानों के लिए मशहूर है। कई लोग यहाँ की भूमि लीज पर लेते हैं और हीरे की तलाश करते हैं और अपनी किस्मत भी आजमाते हैं। ऐसे ही इरादे से राजू नामक शख्स ने अपनी किस्मत आजमाई और हीरे की चमक से उनकी किस्मत भी चमक उठी है। कहते हैं कि किस्मत का ताला किसी भी पल किसी भी स्थान पर खुल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के पन्ना में, जहां एक हीरा खदान में खुदाई करते हुए एक मजदूर को करीब 1 करोड़ की कीमत का हीरा मिला है। दरअसल राजू नाम के शख्स ने करीब 2 महीने पहले अपने बुजुर्ग पिता चुनुवादा के नाम पर पन्ना हीरा कार्यालय से महज 200 रुपए में 8 बाई 8 मीटर भूमि का पट्टा लीज पर लिया था। यह पट्टा पन्ना जिले के कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में है। यह पट्टा लीज पर लेते समय राजू ने सोचा भी नहीं होगा कि यही जगह उसे करोड़पति बनाने वाली है। हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट और पट्टी कल्याणपुर के यहाँ लगाए थे और 1-1.5 महीना हो गया मचाते हैं हमको। आज जाके मिला है। 10 साल से हम खदान ही कर रहे हैं। सब ट्रैक्टर ड्राइवरी करते हैं, मजदूरी सीजन में चलाते हैं, फिर खदान में लग जाते हैं सर। पैसा जब नहीं रहता है तो कहीं इससे उठाते हैं, कभी अभी हम 3-4 लाख कर्जा में चल रहे हैं सर। राजू को मिला हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है। 19.22 कैरेट के जेम क्वालिटी के इस हीरे की कीमत 80 लाख रुपए से लेकर करीब 1 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। इस हीरे को पन्ना जिले के हीरा कार्यालय द्वारा अगली सरकारी नीलामी में बोली के लिए रखा जाएगा और उच्चतम बोली में जो राशि आएगी उसमें से 11.5% रॉयल्टी काटकर शेष राशि पट्टा धारक मजदूर राजू गौड़ के पिता चुनवादा को दे दी जाएगी। पन्ना जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार ने राजू गौड़ के परिवार को हीरे की जमा पर्ची सौंप दी है। पट्टेदार हैं उनको श्री चुनवाद, उनको एक हीरा मिला है 19 कैरेट 22 सेंट का। अनुमानित कीमत 80 लाख के करीब होना चाहिए, बाकी तो नीलामी में जितना अधिक से अधिक उनको मिल पाएगा। हीरा की नगरी है पन्ना और यहाँ प्रयास
लगातार चलते रहते हैं और काफ़ी लोगों को पहले मिल चुके हैं और आगे भी उम्मीद है लोगों को मिलेंगे। 2.2 कैरेट का एक बेस कीमती हीरा है जो कि जेम क्वालिटी का है। संबंधित व्यक्ति हैं चुनवादा, जिनको पट्टी क्षेत्र में खदान दी गई थी, पट्टे दिए गए थे, जिन पर उनके द्वारा अभी लगभग विगत 2 महीनों में उन्होंने डायमंड खोजा है, जिसमें से उनको काफ़ी अच्छा डायमंड मिला है। हालांकि राजू करीब 10 वर्षों से इस धंधे में है, लेकिन अब जाकर उसकी किस्मत चमकी। इस हीरे से राजू की कई मुरादें पूरी होने वाली हैं। लड़का बच्चा पढ़ रहे सर, उसमें लगाएंगे, अगर कहीं थोड़ा जगह जमीन बन जाएगी तो ले लेंगे, उसी में अपना गुजारा चलेगा सर। हीरो के लिए मशहूर मध्य प्रदेश का पन्ना जिला इन दिनों राजू को मिले हीरे की वजह से चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बीते दिनों दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई, जिसमें असम के मोईदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। ये भारत की 43वीं तो पूर्वोत्तर राज्यों की पहली विश्व धरोहर है। ताई अहोम के जटिल अंत्येष्टि अनुष्ठानों को प्रदर्शित करते मोईदाम ईंट पत्थर से बने तहखाने हैं, जिनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। भारत की महान संस्कृति के वैभव का जलवा आज पूरी दुनिया में है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को विश्व पटल पर लगातार नई पहचान मिल रही है। इसी दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि उस वक्त प्राप्त हुई जब असम के मोईदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। देश का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने अंदर लगभग 600 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। ताई अहोम के जटिल अंत्येष्टि अनुष्ठानों को प्रदर्शित करते मोईदाम ईंट पत्थर या मिट्टी से बने तहखाने हैं, जिनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किए जाने से पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। मोईदाम का विश्व धरोहर सूची में शामिल होना दरअसल विश्व मंच पर भारत की विरासत को उजागर करने के नए भारत के निरंतर प्रयास को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने विरासत भी विकास भी की नीति के तहत सांस्कृतिक विरासत से जुड़े स्थलों के संरक्षण और विकास पर विशेष जोर दिया है। 10 वर्षों में 13 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनमें मारू गुर्जर वास्तुकला शैली का बेहतरीन नमूना गुजरात के पाटण स्थित प्रसिद्ध बावड़ी रानी की वाव को 2014, कई तरह के वनों और लुप्त प्राय पशुओं की प्रजातियों वाले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान को भी 2014, सदियों पुराने एक मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातत्विक अवशेषों को सहेजे बिहार के नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल को 2016, प्राचीन वनों, घाटियों, झीलों और शानदार पर्वतों की अनूठी विविधता वाले सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016, रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृतियों वाले चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016, समृद्ध वास्तुशिल्पीय विरासत को प्रदर्शित करते अहमदाबाद के ऐतिहासिक नगर को 2017, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान आधुनिकीकरण के साक्षी मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल को 2018, स्थानीय वाणिज्यिक, शिल्पकारी और सहकारी परंपराओं को समेटे राजस्थान के किलानुमा शहर जयपुर को 2019, 13वीं शताब्दी की अनुपम स्थापत्य कला के प्रतीक तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को 2021, हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी केंद्र गुजरात के कच्छ की भचाऊ तालुका स्थित पुरातत्व स्थल धोलावीरा को 2021, यूरोपीय आधुनिकतावाद से अलग एशियाई आधुनिकता के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 2023 और कर्नाटक के 13वीं सदी के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को 2023 में जगह मिल चुकी है। सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण के साथ साथ सैकड़ों बहुमूल्य कलाकृतियों को देश वापस लाना भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। अब तक 350 से अधिक ऐसी कलाकृतियों को वापस लाया जा चुका है। मोदी सरकार के इन ठोस प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया के लोग भारत की इस शानदार सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने के लिए उमड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबरें पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई।
भारतीय हॉकी टीम ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर जीत के साथ पेरिस ओलंपिक का आगाज किया है। हरमनप्रीत सिंह ने आखिरी समय में किए गए गोल के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। पूरे मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। पहले क्वार्टर में न्यूजीलैंड ने गोल करके 1-0 की बढ़त ली। हालांकि दूसरे क्वार्टर में मनदीप सिंह ने गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। तीसरे क्वार्टर में विवेक सागर ने गोल करके भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। न्यूजीलैंड की तरफ से सिमोन ने 53वें मिनट में गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया, लेकिन मैच खत्म होने से ठीक पहले हरमनप्रीत ने गोल करके टीम को रोमांचक जीत दिला दी। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन निशानेबाजी में भारत के लिए अच्छी खबर आई। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में स्थान बना लिया है। मनु 60 शॉट के क्वालिफाइंग राउंड में 580 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। उन्होंने पहली सीरीज में 97, दूसरी में 97, तीसरी सीरीज में 98, चौथी में 96, पांचवीं 96 और छठी सीरीज में 96 अंक हासिल किए। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत आसान जीत के साथ की। पहले ग्रुप मुकाबले में ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया। पहला गेम महज 14 मिनट में जीतने में और दूसरे गेम में पीछे रहने के बाद वापसी करते हुए उन्होंने मुकाबला अपने नाम किया। लक्ष्य ने ग्वाटेमाला के खिलाड़ी के खिलाफ मैच को 21-8, 22-20 से जीत लिया। वहीं पदक के दावेदार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहले मुकाबले में फ्रांस की लुकास कोरवी और रोनन लबर की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले को सीधे गेम में 21-17, 21-14 से अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में दोनों भारतीय जोड़ियों में से कोई भी पदक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। पदक राउंड के लिए क्वालिफिकेशन दौर में ये शामिल नहीं हो सके। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों जोड़ियों को निराशा लगी। रमिता जिंदल और अर्जुन बतूता छठे स्थान पर रहे, जबकि इला वेनिलिन वाला रिवान और संदीप सिंह 12वें स्थान पर रहे। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी है। भारत के 2 निशानेबाज सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा फाइनल में स्थान नहीं बना पाए। सरबजोत सिंह 9वें स्थान पर और अर्जुन सिंह चीमा 18वें स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक में भारत के बलराज पवार रोइंग में सिंगल्स स्कल्स हीट में चौथे स्थान पर रहे। अब वे रविवार को रेपेचाज राउंड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने 7 मिनट 7.11 सेकंड का समय निकाला। रेपेचाज राउंड भारतीय समयानुसार रविवार दोपहर 1:06 पर आयोजित किया जाएगा। और 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 43 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 213 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 19 ओवर और 2 गेंदों पर 170 रन बनाकर सिमट गई। एक वक्त श्रीलंका का स्कोर केवल एक विकेट पर एक समय श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट पर 140 रन था। हालांकि इसके बाद श्रीलंकाई टीम ने 30 रन बनाने में अगले 9 विकेट गंवा दिए। श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका ने सबसे ज़्यादा 79 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से रियान पराग ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट चटकाए। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 213 रन बनाने में सफलता पाई। भारत के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंद पर 58 रन बनाए। वहीं ऋषभ पंत ने 49 रन का योगदान दिया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 40 और शुभमन गिल ने 34 रन का योगदान दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।